صوفیہ کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اپنے اپنے دور میں دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے جہاں انہیں مشکلات اور تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا، وہاں راہ حق کے سفر میں انہیں ایسے ساتھی اور ہم سفر سے بھی ملے جنہوں نے دل و جان سے ان کا ساتھ دیا، ان کی خاطر نہ صرف اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے بلکہ اپنے تمام وسائل بھی ان پر لٹا دیے۔ یہ کتاب جس شخصیت کے متعلق ہے وہ بھی اپنے آقا کے بہترین ساتھی تھے، معاشرے کے خوشحال تاجر، ممتاز مقام کے حامل فرد، ان کی پوری زندگی پاکیزگی اور نیکی کی علامت تھی۔ وہ دل کے نرم تھے، لوگوں سے ہمدردی اور محبت ان کا شعار تھا، زندگی بھر جھوٹ سے دور رہے۔ جب جہالت سے بھرا ہوا معاشرہ ہدایت کی روشنی سے منور ہونے لگا تو مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے سچائی کے راستے پر لبیک کہا۔ ان کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ بحیثیت تاجر وہ ہدایت کی روشنی بانٹنے والے ہادی کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، کئی تجارتی سفر اکٹھے کیے تھے، ان کی بے انتہا خوبیوں اور اعلیٰ اخلاق نے ان کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ اسی بنا پر ان کا تجارتی تعلق رفتہ رفتہ گہری دوستی میں تبدیل ہو گیا، اتنی گہری دوستی کہ صبح و شام ملاقات لازم ٹھہر گئی تھی۔ اس لیے جب ان کے دوست ان کے رفیق نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کا نعرہ بلند کیا تو انہوں نے بغیر کسی جھجک کے اس پر یقین کر لیا اور اولین ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئے۔ ہر آدمی کا ایک اپنا دائرہ اثر ہوتا ہے، پھر جو شخص معاشرے میں بلند مرتبہ یا بلند مقام رکھتا ہو، اپنی الگ پہچان اور شناخت کا حامل ہو، اس کے اثر کا دائرہ زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ اس لیے ان کے ایمان لاتے ہی روشنی کا دائرہ تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا اور کئی اہم اور بلند مرتب لوگ اس سفر میں ان کے ساتھ مل گئے۔ لیکن سچائی کے اس راستے پر چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حق کا راستہ روکنے والے دشمنی کے نت نئے حربے آزمانے لگے، ان کی ذات بھی اس دشمنی کی زد میں آ گئی۔ انہوں نے بہت حوصلے کے ساتھ اس مصائب کا برداشت کیا۔ ہجرت کے موقع پر وہ ہر مقام پر اپنے آقا کے ساتھ رہے، جنگ کے میدان میں، سفر و حضر میں، ہر جگہ انہوں نے رفاقت کا حق ادا کیا۔ جب ان کے آقا دنیا سے رخصت ہوئے تو وہی تھے جنہوں نے انتشار میں گھرے ہوئے لوگوں کو یکجا کیا، انہیں حوصلہ دلایا، ان کے اندر جینے کی نئی امنگ پیدا کی۔ اس پر بردباری، تحمل مزاجی نے اور آقا کے بہترین دوست ہونے کے ناطے لوگوں نے انہیں اپنا خلیفہ چن لیا۔ آقا کی رحلت کے بعد موقع پرستوں نے کئی فتنے برپا کیے، لیکن انہوں نے انتہائی جرات اور مستقل مزاجی کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ان کی بصیرت، کامل عقل اور دانائی کی بنا پر سلطنت مضبوطی اور استحکام اختیار کرتی ہوئی۔ وہ عبادت کا بہت شوق رکھتے تھے، پرہیزگاری ان کا وصف تھا، انہیں ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ آج ہم جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا، سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ مشرق سے ابھر رہی تھی، ہر طرف پھیلا سکون اور خاموشی دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ شاید اس سے زیادہ پرامن علاقہ اور کوئی نہیں۔ صحرا اور بے آب و گیا زمین پر پھیلے پہاڑ عجیب منظر پیش کر رہے تھے، لیکن یہ سکون بس چند لمحوں ہی کا مہمان تھا۔ کچھ لوگ ایک جگہ جمع تھے، ان کے چہروں پر استحاضہ یعنی کسی کی ہنسی اڑانے کی کیفیت مچل رہی تھی، ان کی آنکھوں میں ان گنت سوال شک کے وجود میں لپٹے لہرا رہے تھے، ان کی پیشانیوں کی تمتماہٹ بتا رہی تھی کہ بہت جلد انہیں کوئی بڑی کامیابی حاصل ہونے والی ہے، ایسی کامیابی جس کا انہیں عرصے سے انتظار تھا۔ ان کی آپس کی چہمگونیاں بلند ہونے لگیں۔ کچھ سنا تم نے؟ نہیں تو کیا کوئی خاص بات ہے؟ خاص ہی تو ہے، بڑا دعویٰ تھا انہیں حق کا پیغام پھیلانے کا۔ ہاں، وہ یہی تو کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم نے ان کا جھوٹ کا پیغام ابھی تک نہیں سنا؟ جھوٹ کا پیغام؟ جھوٹ؟ اور ان کے منہ سے حیرت کی شکنیں سب کے چہروں پر پھیل گئیں۔ ہاں، جھوٹ نہیں تو اور کیا؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ انہوں نے آج ایک اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ جیسے ماننا سورج کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اچھا، کیا واقعی؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ وہ رات کے کسی حصے میں مسجد اقصیٰ گئے تھے اور اب صبح ہمیں وہ اس سیر کا ماجرا بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو واقعی سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بھلا یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے؟ کسی کا دل و دماغ بھی اس بات کی سچائی کو تسلیم نہیں کر رہا۔ تو چلو آج پھر ایک اور تماشا دیکھیں، ان کے ایک سردار نے کہا۔ تماشا؟ کہاں؟ لوگوں نے سوال کیا۔ ارے اسی ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو ان کی ہر بات کو سچ مان کر ان کا ساتھ دیے جا رہا ہے۔ ہاں، تو پھر انہیں جھٹلانے کا اس سے بہترین موقع اور کوئی نہیں ہوگا، ان میں سے ایک نے خوشی سے چلا کر کہا۔ وہ لوگ اکٹھا ہو کر ابن ابی قحافہ کے پاس پہنچے، ان کے چہروں پر ناچتی غمگینی کو ابن ابی قحافہ نے بھی بھانپ لیا۔ وہ ہوشیار ہو گئے، ویسے انہیں ابھی تک اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ان کے بہترین رفیق اور دوست اپنی رات کی سیر کا کیا حال کہہ چکے ہیں۔ ابن ابی قحافہ ایک بڑا سردار بولا، تم نے کچھ سنا اپنے صاحب کے بارے میں؟
کیوں، کیا ہوا؟ آپ کے صاحب کہتے ہیں کہ وہ رات بیت المقدس گئے، وہاں سے 7 آسمانوں پر گئے اور واپس بھی آ گئے۔ اس سردار نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، کیا واقعی انہوں نے یہ فرمایا ہے؟ ابن قحافہ اشتیاق بھری آواز میں بولے، ہاں بالکل، یہ سب انہوں نے کہا ہے۔ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ان کے سچے ہونے میں مجھے ذرہ برابر بھی شک نہیں، کیونکہ سچ کے سوا ان کی زبان مبارک پر کوئی اور بات نہیں آتی۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کے وقت بیت المقدس گئے، وہاں سے 7 آسمان پر گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں تو اس سے دور کی خبریں بھی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ تصدیق کرنے والے کون تھے؟ یہ تو آپ جان ہی گئے ہوں گے، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کی بلا شک و شبہ تصدیق کر دی تھی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں سے سوال و جواب کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اللہ کے رسول، کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سنتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جو کچھ آپ نے فرمایا میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ آپ بالکل سچے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب اسی لیے ملا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی فوراً تصدیق کی، اس موقع پر بھی اور دوسرے مواقع پر بھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ مجھ پر ابو بکر کا احسان باقی ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن عطا کرے گا، اور مجھے کسی کے مال سے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ خبردار، تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا دوست ہے، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوست بنایا ہے اسی لیے اللہ کے سوا میں کسی کو دوست نہیں بنا سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تقریباً 2.5 سال قبل دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے پہلے سال اور سیدنا ابو بکر صدیق عام الفیل کے تیسرے سال پیدا ہوئے۔ عام الفیل ہاتھیوں والے سال کو کہتے ہیں، یعنی وہ سال جس میں اسرائیلی حکمران ابراہا نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے کو ڈھانے کے لیے چڑھائی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ننھے منھے پرندوں کے ذریعے اسے اور اس کے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے لوگ جہالت کا شکار تھے، ان میں بے شمار اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھیں۔ لوگ پتھر اور لکڑی کے بنے بتوں کو معبود مان کر ان کی پوجا کرتے تھے، شراب نوشی اور جوا ان کی گھٹی میں پڑے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی معاشرے میں جنم لیا، لیکن وہ ان سب خرابیوں سے پاک تھے۔ وہ بچپن ہی سے نیک فطرت تھے، اس لیے ان برائیوں سے بچے رہے۔ والد نے آپ کا نام عبد القعبہ رکھا، جس کا مطلب تھا کعبے کا بندہ۔ بعد میں اس نام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ سے بدل دیا، لیکن آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ابو بکر دراصل آپ کی کنیت تھی۔ عربوں میں باپ، بیٹے، بیٹیاں یا ماں کی نسبت سے ایک اور نام رکھ دیا جاتا ہے جسے کنیت کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ نام کسی خوبی کی بنا پر رکھ دیا جاتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی کنیت کا تعلق بھی اسی قسم سے ہے۔ اصل میں بکر کا مطلب ہے کسی کام میں پہل کرنا۔ آپ نیکی کے کاموں میں ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ آپ کی اچھی عادات اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وجہ سے لوگوں نے آپ کی کنیت ابو بکر رکھ دی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب صدیق کس بنا پر ملا یہ تو آپ سن ہی چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں 2 اور لقب بھی ملے، عتیق اور یار غار۔ عتیق کا مطلب ہے آزاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک موقع پر فرمایا تھا، تم اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو۔ یار غار کا لقب اس لیے ملا کہ ہجرت کے دوران غار ثور میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو تمیم سے تھا۔ 7ویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر اور کنیت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور وہ اسی نام سے مشہور تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا اور ان کا شمار مکے کے کامیاب اور خوشحال تاجر میں ہوتا تھا۔ فتح مکہ کے روز انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود انہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ وہ بیعت کر سکیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سلمہ بنت سخر نے ان کے اسلام لانے سے چند ہی سال بعد اسلام قبول کر لیا۔ ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بہت پاکیزہ اور اچھے انداز میں گزرا۔ وہ دل کے بہت نرم تھے، لوگوں سے ہمدردی اور محبت ان کا شعار تھا۔ جہاں کسی کو تکلیف میں دیکھتے اس کی تکلیف دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کو علم حاصل کرنے کی بہت لگن تھی، اسی بنا پر آپ نے عربی زبان و ادب کو خاص طور پر پڑھا۔ لوگ آپ کے علم کی وجہ سے آپ کو عربی زبان کا عالم سمجھتے تھے۔ آپ نے 18 برس کی عمر میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ تجارت کرتے ہوئے آپ نے ہمیشہ سچائی اور دیانتداری سے کام لیا۔
جاہلیت کے اس دور میں یہ بڑی نایاب خوبی تھی، اس لیے آپ کی تجارت چمک اٹھی اور آپ کا شمار مکے کے مالدار اور معزز تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت کے سلسلے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یمن، عراق اور شام جاتے تھے، وہاں سے کپڑا خرید کر لاتے اور فروخت کرتے تھے۔ تجارت اور ذاتی خوبیوں کے حوالے سے ان کا خاندان پہلے ہی نیک نام تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی نیکی، دیانتداری، ملنساری اور پرہیزگاری نے ان کی شہرت اور عزت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ لوگ اپنے مسائل کے حل اور مشکلات سے نپٹنے کے لیے اکثر آپ کے پاس آتے تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے کام آتے تھے۔ یہ شہرت اور عزت انہیں محض مکہ اور قرب و جوار کے قبلوں ہی میں سے حاصل نہیں تھی، بلکہ ہمسایہ علاقوں کے دوسرے عرب قبیلے بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ یہ نیک نامی اور شہرت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تجارت کے سلسلے میں سفر کرتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی تجارتی سفر اکٹھے کیے۔ دونوں ہستیوں کا یہ تجارتی تعلق رفتہ رفتہ گہری دوستی میں بدلتا گیا۔ اسی طرح ان کے درمیان محبت کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا اور تجارت کے علاوہ بھی ان کا وقت اکٹھے گزرنے لگا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام ان کے گھر تشریف لے جانے لگے۔ ویسے تو سفر میں بھی آدمی ایک دوسرے کی خوبیاں پہچان جاتا ہے، لیکن جب یہ ساتھ صبح سے لے کر شام تک پھیل جائے تو پھر کسی بات سے ڈھکے چھپے رہنے کا امکان باقی ہی نہیں رہتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفتہ رفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے انتہا خوبیوں کا اور اعلیٰ اخلاق کو جان گئے۔ پورے مکے میں ان سے بڑھ کر اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے شب و روز سے واقف نہیں تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 38 سال کے تھے، چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ انہیں علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان سے پہلے 3 افراد اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی سیدہ خدیجہ، سیدنا علی اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر محض 10 برس تھی۔ گویا بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، جبکہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور منہ بولے بیٹے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آزاد مرد تھے جنہیں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ انہیں چونکہ قریش میں ایک ممتاز حیثیت اور مقام حاصل تھا، اس لیے ان کے قبول اسلام کا معاملہ صرف انہی کی ذات تک محدود نہ رہا، بلکہ ایمان کی روشنی کا دائرہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ لوگ تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ نبوت کے اعلان کو تقریباً 3 سال ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرصے میں دعوت تبلیغ کا کام انتہائی رازداری سے سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ زیادہ تر ان لوگوں کی طرف تھی جو باشعور اور سمجھدار تھے، کیونکہ ایسے ہی لوگوں سے امید کی جا سکتی تھی کہ جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جائے تو وہ جھگڑا نہیں کریں گے، ایمان کی سچائی کو دل و جان سے تسلیم کر لیں گے، اور اس کام میں سیدنا ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا۔ عام لوگوں میں اسلام کی دعوت پہنچانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو بھی حق کا پیغام پہنچایا، جس کے نتیجے میں سیدنا عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بلند مرتب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان 3 سالوں کی تبلیغ کے نتیجے میں تقریباً 150 افرادوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے والے اپنے اسلام کو کافروں سے چھپا کر رکھتے تھے، نمازیں چھپ کر پڑھی جاتی تھیں تاکہ کافروں کو اس کا علم نہ ہو اور ان کے خلاف کوئی طوفان نہ اٹھ کھڑا ہو، لیکن راز تو ہوتے ہی کھلنے کے لیے ہیں، بھید جتنا بھی چھپایا جائے وقت کے ہاتھوں اس پر سے پردہ اٹھ کر رہتا ہے۔ ایک دن کچھ کافروں نے مسلمانوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا، پھر کیا تھا، انہوں نے انہیں خوب برا بھلا کہا، باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر ملامت کی۔ اس بات کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو مسلمانوں کو اپنے ایک پیارے صحابی ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں نماز کے لیے جمع ہونے کی ہدایت کر دی۔ یہ مکان اپنے محل و وقع کے اعتبار سے بہت محفوظ تھا۔ صفا پہاڑی قریب ہونے کی بنا پر کافروں کے لیے حملہ کرنا آسان نہیں تھا، چنانچہ مسلمانوں نے قدر اطمینان اور سکون سے اس مقام میں نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ نبوت کا 4تھا سال تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ شروع فرمائی تو مصائب کے نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ کافر سیخ پا ہو گئے، ان کا غصہ آخری حدود کو چھونے لگا، وہ مسلمانوں کو ستانے لگے، دشمنی کے رنگ اور روپ بدل کر سامنے آنے لگے۔ تقریباً 9 سال مسلمانوں نے یہ ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن کفار کی اذیتیں اور تکلیفیں دین حق کا راستہ نہ روک سکی۔ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی گئی۔ مصائب برداشت کرنے والوں میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنا تمام تر مال اسلام کی خاطر وقف کر دیا تھا۔ ان کے پاس تقریباً 40,000 درہم تھے، اس میں سے زیادہ تر رقم انہوں نے عرب مسلمانوں کو کافروں کے پنجے سے آزاد کروانے کے لیے اور اسلام کی ترقی کے لیے استعمال کر ڈالی۔ انہوں نے اپنے مال سے جن غلاموں کو آزاد کروایا تھا ان کا نام یہ ہیں: بلال ابن رباح، عامر بن فقیرہ، ام ابیس، ابو فقیہ،
नादिया और उनकी बेटी और बनो मुमिल की लौंडी जुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने इन सब को खरीद कर आजाद किया। आपके वालिद अबू कहाफा जो उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, बेटे को इस तरह दौलत लुटाते देखकर बोले, बेटा मैं देख रहा हूँ कि तुम जिन लोगों को आजाद करवाने पर पैसे खर्च कर रहे हो वो बहुत कमजोर हैं। तुम मजबूत लोगों को आजाद करवाते तो वो तुम्हारे काम आते। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, इन गरीबों को मैंने अपने फायदे के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए आजाद कराया है, वही इसका बदला देगा। ये जवाब सुनकर उनके वालिद खामोश हो गए। नतीजे में जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक के चचाजाद भाई तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। उनके इस्लाम कबूल करने का हाल कुरैश के एक सरदार को मालूम हुआ तो उसने अपनी इस्लामी दुश्मनी का सबूत देते हुए सैयदना तलहा और सैयदना अबू बकर सिद्दीक को रस्सी से बांधकर खूब मारा पीटा, लेकिन उसका हर जुल्म सितम उनके इरादों को पुख्ता करता रहा और वो इस्लाम पर कायम रहे। एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में तशरीफ ले गए। काफिरों ने देखा तो मौका गनीमत जानकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने पर तुल गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में ले लिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को काफिरों की इस हरकत की खबर हुई तो फौरन काबे का रुख किया और कुफारे मक्का से कहा, तुम पर अफसोस है, तुम एक ऐसे शख्स को मार डालते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो अल्लाह की साफ नजर आने वाली निशानियां लेकर तुम्हारे पास आया है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का इतना कहना था कि काफिर और भी देश में आ गए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो छोड़ दिया, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तुल पड़े, मार कर उनको लहूलुहान कर दिया। लेकिन वो मार खाकर बस इतना कहते थे, ए इज्जत और शान वाले अल्लाह, तेरी जात बहुत बरकत वाली है। मार खाते खाते बेहोश होकर गिर पड़े। उनके कबीले वालों को जब उसका हाल मालूम हुआ तो दौड़े आए और उठाकर घर ले गए। सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अब्बा जान को जख्मी हालत में घर लाया गया तो उनकी हालत ये थी कि सर पर जिस जगह हाथ लगाओ वहाँ से बाल झड़ जाते। बहुत देर के बाद उन्हें होश आया तो सबसे पहले उनके मुंह से अल्फाज निकले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। उस मौके पर उनके कबीले के कुछ ऐसे लोग भी वहाँ मौजूद थे जो इस्लाम नहीं लाए थे। उन्होंने जब उसकी ज़बान से ये अल्फाज सुने तो गुस्से में आ गए। ये बात उनकी अक्ल फहम से बालातर थी कि जिसकी वजह से उनका इतना बुरा हाल हुआ है। उस हालत में ख्याल आया तो भी सिर्फ उसी का। कहने लगे, तुम पर अफसोस है, इस हालत में भी मोहम्मद का ख्याल नहीं छोड़ते। उन लोगों के जाने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपनी वालिदा से फिर वही सवाल पूछा। गो कि उनकी वालिदा अभी तक इस्लाम की रोशनी से महरूम थी, लेकिन फिर भी बेटे की मोहब्बत ने उनके रिश्ते को कमजोर नहीं पड़ने दिया था। उसकी माँ ने उनसे कहा, मुझे उनका कुछ हाल मालूम नहीं। वो बोले, जाकर खुताब की बेटी उम्मे जमील से पूछें। उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी। उनका असली नाम फातिमा था। वो मुसलमान हो चुकी थी, लेकिन अब तक वो बड़ी कामयाबी से अपने कौल इस्लाम को काफिरों से छुपाए हुए थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा ने जब उनके यहाँ जाकर उनसे कहा कि मेरा बेटा मोहम्मद का हाल पूछ रहा है तो उम्मे जमील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके साथ उनके घर गयी। जब उन्होंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हालत देखी तो बेइख्तियार चीख पड़ी और बोली, अल्लाह की कसम, जिन लोगों ने आपके साथ ये सलूक किया है वो सख्त काफिर हैं, बुरे लोग हैं। मुझे उम्मीद है अल्लाह उनसे बदला जरूर लेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उम्मे जमील से रसूलुल्लाह का हाल दरियाफ्त करते हुए पूछा। उम्मे जमील ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, क्योंकि उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक की वालिदा भी करीब थी। अभी तक वो मुसलमान नहीं हुई थी। उम्मे जमील ने आहिस्ता से कहा, आपकी वालिदा सुन रही हैं। उस पर वो बोले, तुम उनकी फिक्र ना करो, उनसे कोई खतरा नहीं। तब उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खैरियत से हैं और दार अरकम में हैं। ये सुनकर वो बोले, अल्लाह की कसम, मैं उस वक्त तक कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक रसूलुल्लाह को ना देख लूं। चुनाचा रात की तारीखी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हालत देखी तो आंखों में आंसू आ गए। झुककर उनकी पेशानी चूमी। उस मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपनी वालिदा के मुसलमान होने की ख्वाहिश जाहिर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और उनकी वालिदा ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। काफिरों का जुल्म जब अपनी इंतहा को छूने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का मशवरा दिया। काफी मुसलमान हिजरत कर गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने भी हिजरत की गर्ज से मक्के को छोड़ा। रास्ते में उन्हें कबीला कारा के सरदार राबिया बिन रफीक मिले। उनकी कुनियत इब्ने दागिना थी। उसने पूछा, अबू बकर, कहाँ का इरादा है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मेरी कौम ने मुझे निकाल दिया है, मुझे अजियत पहुँचाई और मुझ पर हालात तंग कर दिए, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि इबादत के लिए किसी और जगह चला जाऊँ। इब्ने दागिना ने कहा, अबू बकर, आप जैसे शख्स को निकालना चाहे ना निकालना चाहे, आप तो खानदान और कबीले को इज्जत और जीनत बख्शते हैं, हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद करते हैं, भलाई के काम करते हैं। मैं आपको पनाह देता हूँ, वापस चलें, आप मेरी पनाह में हैं। अपने शहर में अपने रब की इबादत करें। चुनाचा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसके साथ वापस लौट आए। मक्के में दाखिल होकर इब्ने दागिना ने कहा, ए कुरैशियों, मैंने अबू कहाफा के बेटे को पनाह दी है, लिहाजा उसके साथ खैर भलाई के साथ पेश आना। कुरैश
कुरैश ने इस शर्त पर उनकी पनाह मंजूर कर ली कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपने घर के अंदर जिस तरह चाहे इबादत करें, घर से बाहर इबादत ना करें, ना ऊंची आवाज में कुरान पढ़ें। उन्होंने ये बात मान ली, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दिल बहुत नरम था। जब वो घर में कुरान की तिलावत करते तो बेख्तियार रोने लगते। उनके रोने की आवाज सुनकर लोग घरों से निकल आते, राह चलते रुक जाते और कुरान सुनने लगते। मक्का के काफिरों ने जब ये माजरा देखा तो इब्न दागिना के पास गए और जाकर शिकायत की। इब्न दागिना ने जब हजरत अबू बकर सिद्दीक से कुरैश की शिकायत बयान की तो आपने उसकी पनाह वापस कर दी और फरमाया, मैं अपने लिए अल्लाह की पनाह पर राजी हूँ। उसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक बेफिक्र होकर पहले की तरह इस्लाम की दावत फैलाने का काम करने लगे। काफिरों ने उन्हें कई बार शदीद तकलीफ पहुंचाई, लेकिन वो साबित कदमी से इस्लाम और अल्लाह के रसूल की हिमायत में डटे रहे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा फरमाती हैं, मैंने अपने होश में अपने वालिदैन को दीन हक की पैरवी करते हुए देखा है, और हम पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि सुबह शाम दोनों वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास ना आते हों। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, मुझे तुम्हारे हिजरत की जगह दिखाई गई है, वहाँ खजूरों के दरख्त हैं और उसके दोनों तरफ पथरीले मैदान हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जब मदीना हिजरत की तैयारी की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, ठहर जाओ, क्योंकि उम्मीद है कि मुझे भी इजाजत मिल जाएगी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो, क्या आपको इसकी उम्मीद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अपने हमरा सफर के लिए रोक लिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रफाकत सफर के ख्याल से अपना इरादा मुलतवी कर दिया और 4 महीने तक 2 ऊँटनियों को लेकर के पत्ते खिलाकर तैयार करते रहे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि एक दिन हम दोपहर के वक्त बैठे हुए थे, इतने में किसी ने कहा, वो देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर और मुंह पर चादर ओढ़े तशरीफ ला रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले कभी उस वक्त तशरीफ नहीं लाए थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह की कसम, आप इस वक्त किसी खास जरूरत ही से आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे हिजरत की इजाजत मिल गई है। ये सुनकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो, मुझे भी आपके साथ चलने की इजाजत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। ये सुनकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक इतना खुश हुए कि रोने लगे। सैयदा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह की कसम, मुझे उस रोज पता चला कि खुशी के आंसू भी होते हैं। उस मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपनी 2 ऊँटनियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश करते हुए कहा, मेरी इन 2 ऊँटनियों में से एक आप ले लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कीमत दे कर लूंगा। सैयदा आयशा बयान करती हैं कि हमने जल्दी से दोनों के लिए सफर का सामान तैयार किया, एक चमड़े की थैली में उनके लिए खाना रख दिया। सैयदा अस्मा बिन्ते अबी बकर ने अपने कमर बंद का एक टुकड़ा काटकर उससे थैली का मुंह बंद किया। उस वजह से उनका लक़ब ज़ातुल नताक़ीन रखा गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक जबल सौर के गार में पहुंचे। ये गार मक्के के जुनूब मशरिक में तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर है। रास्ता पथरीला था, दोनों के पांव जख्मी हो गए। रास्ते में सैयदना अबू बकर सिद्दीक कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हो जाते और कभी पीछे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो अर्ज किया, जब मुझे दुश्मन का आगे से खतरा महसूस होता तो मैं आगे हो जाता हूँ, और जब पीछे से खतरा महसूस होता है तो पीछे हो जाता हूँ। गार सौर बहुत बुलंदी पर था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी मुश्किल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊपर पहुंचे। पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक खुद अंदर दाखिल हुए, गार को अच्छी तरह साफ किया, झाड़ा पोछा, जहाँ जहाँ सुराख नजर आए उनको अपनी चादर फाड़कर बंद किया। फिर भी 2 सुराख बच रहे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उन सुराखों पर अपने पाँव रख दिए। फिर रसूलुल्लाह से अर्ज की कि अंदर तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए और सैयदना अबू बकर सिद्दीक की आगोश में सर रखकर सो गए। उधर सुराखों पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पाँव रखे थे, उनमें से किसी चीज ने आपको डस लिया। उन्होंने काफी देर सब्र के साथ तकलीफ को बर्दाश्त किया, मामूली सी भी हरकत ना की कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख ना खुल जाए। लेकिन जब दर्द हद से बढ़ गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गिरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुम्हें क्या हुआ? अर्ज की, मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे किसी चीज ने काट लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पर अपना लुआब लगा दिया। जहर का असर फौरन दूर हो गया और तकलीफ जाती रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन तक गार सौर में छुपे रहे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुल्लाह बिन अबी बकर रात को उनके पास आ जाते थे और फिर रात के पिछले पहर वापस चले जाते थे। सुबह वो कुरैश मक्का के साथ उस तरह घुल मिल जाते जैसे रात को वहीं रहे हों। दिन भर उनकी बातें सुनते, उनके इरादे जानते और रात को ये खबर लेकर गार सौर पहुंच जाते। आमिर बिन फुहैरा सैयदना अबू बकर सिद्दीक के गुलाम थे। वो गार के आसपास बकरियां चराते और रात को उन्हें बकरियों का ताजा दूध पहुंचाते। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बेटियां उन दोनों के लिए खाना तैयार करती जिसे रात की तारीखी में उन तक पहुंचाया जाता। उस तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक का पूरा घराना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की सादत में लगा रहा। तीसरी रात उस गार से निकले अब्दुल्लाह बिन उरैकत नामी एक शख्स को उजरत पर रास्ता बताने के लिए साथ ले लिया। आमिर बिन फुहैरा भी साथ थे। मक्के के काफिर अभी तक उनका सुराग लगाने के लिए बेकरार थे। सुबह से लेकर शाम तक वो उन्हें ढूंढते फिरते थे। पहले दिन काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सैयदना अली को पाया था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी घर में न मिले। तब उन्होंने ऐलान किया, जो शख्स मोहम्मद या अबू बकर को पकड़ कर लाएगा उसे हर एक के बदले में 100 ऊंट इनाम दे दिए जाएंगे।
क़िबला बनो मुदलिज का सरदार सराका ये ऐलान सुनते ही हथियार सजाकर उनकी तलाश में घोड़े पर रवाना हुआ। सराका मजबूत जिस्म का मालिक एक बहादुर शख्स था। उसकी तलाश रायगा न गई। तलाश करते करते वो उनके करीब पहुंच गया, लेकिन उससे पहले कि वो करीब पहुंच पाता, घोड़े ने ठोकर खाई और सराका को लिए जमीन पर जा रहा। सराका संभल कर दोबारा घोड़े पर बैठा, लेकिन फिर ठोकर खाई और जमीन पे जा गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ये सारा माजरा मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। दुश्मन को सर पर देख कर बोले, अल्लाह के रसूल, हमारा पीछा करने वाला बहुत करीब आ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। उसके साथ ही सराका का घोड़ा जमीन में धंस गया। ये देखकर सराका पुकारा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, घोड़ा बाहर निकल आया। सराका आजिज़ी के साथ सर झुकाए करीब आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों के ऐलान के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे किसी को भी अपने बारे में खबर देने की ममानियत की और उसे वापस जाने की इजाजत दे दी। यसरब यानी मदीने के लोगों को आपकी आमद की इतला मिल चुकी थी। वो बेचैनी से आपकी राह देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 दिन के सफर के बाद कुबा के करीब पहुंचे। कुबा मदीने से 4 किलोमीटर के फासले पर जुनूब मगरिब में एक गांव था। लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर हुई तो वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते उमड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में मस्जिद बनवाई। चंद दिन ठहरने के बाद वहाँ से मदीने की तरफ रवाना हो गए। मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक अबू अय्यूब अंसारी के यहाँ ठहरे। मदीने में मुसलमानों की सहूलत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने का इरादा फरमाया। मस्जिद के लिए जो जमीन खरीदी गई उसकी कीमत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अदा की। तमाम मुसलमानों ने मस्जिद की तामीर के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मदीने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पहले की तरह फिर कपड़े की तिजारत शुरू कर दी, लेकिन ज्यादातर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बसर होता था। आपकी कोशिश होती थी कि हर वक्त और हर जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तमाम मार्कों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। ग़ज़वा बदर में लड़ाई के आगाज से कबल सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने बड़े एहसन अंदाज से गुफ्तगू की और मुसलमानों को मुखातिब करके फरमाया, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। जंग के आगाज से पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी देर तक अल्लाह ताला से फतह और नुसरत के लिए दुआ करते रहे। जब वक्त ज्यादा गुजर गया तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दिल भर आया। वो बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बस कीजिए, आप बहुत दुआ मांग चुके हैं, अल्लाह आपसे किया हुआ वादा जरूर पूरा फरमाएगा। लड़ाई शुरू हुई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहे। जो भी इधर का रुख करता वो फौरन आगे बढ़कर उस पर हमला कर देते। काफिरों के इस लश्कर में उनके बेटे अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थे। वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। जंग के बाद जब वो मुसलमान हो गए तो उस वक्त उन्होंने कहा, अब्बा जान, बदर की लड़ाई में आप मेरी तलवार की जद में आए थे, लेकिन मैंने वार नहीं किया था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ये बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, अगर तुम मेरी तलवार की जद में आते तो मैं तुम्हें हरगिज न छोड़ता। जंग ओहद में मुसलमानों के एक दस्ते की गलती की वजह से जब मुसलमान मुसीबत से दो चार हो गए और चारों तरफ से काफिरों के घेरे में आ गए, काफिर अल्लाह के रसूल पर पूरी कुव्वत से टूट पड़े। उस वक्त जिन चंद जानसार सहाबा ने दुश्मनों का मुकाबला किया उनमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी शामिल थे। उसी तरह ग़ज़वा हुनैन के मौके पर जब लोग मैदान छोड़ गए थे तो आप उन लोगों में शामिल थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित कदम रहे। जंग खंदक में भी फौज के एक दस्ते के साथ खंदक की हिफाजत करते रहे। बाद में उस जगह पर एक मस्जिद बनाई गई जो मस्जिद सिद्दीक के नाम से मशहूर हुई। ग़ज़वा तबूक के मौके पर स्याह झंडा उनके हाथ में था। अर्ज़ के सैयदना अबू बकर सिद्दीक किसी भी मार्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे नहीं रहे। जब बैत रिज़वान हुई और सुलह की शर्त तय की गई तो कुछ शराइत मुसलमानों को नागवार गुजरी। लोग सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास आए और अपने ख्याल का इजहार किया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह जिस तरह हुक्म देता है आप उसी तरह करते हैं, अल्लाह उनकी मदद करेगा, तुम उनकी अताअत करते रहो, अल्लाह की कसम वो हक पर है। ग़ज़वा ताइफ में आपके बेटे अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तीर लगने से जख्मी हो गए। उसी जख्म से उनकी वफात हो गई। तबूक की लड़ाई के मौके पर लश्कर के लिए हथियारों और सवारियों की बहुत कमी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया कि दिल खोलकर माल और सामान दें। चुनांचा हर मुसलमान चाहे वो अमीर था या गरीब अपनी हैसियत के मुताबिक माल, घोड़े, ऊंट और गल्ला वगैरह लाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने इस मौके पर इसार की बेहतरीन मिसाल पेश की। अपने घर का सारा सामान ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर, अपने बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? उन्होंने अर्ज किया, उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। उस लड़ाई में फौज का झंडा सैयदना अबू बकर सिद्दीक को दिया गया था। उस जंग में फौज का सारा इंतजाम भी उन्हीं के हाथों में था। जंग तबूक से वापसी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अमीर हज मुकर्रर फरमाया। उन्होंने लोगों को हज करवाया। 11 हिजरी में जंग मोता का बदला लेने और रोम के बादशाह से जंग के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तैयार किया। उस लश्कर का सालार उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुकर्रर किया गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी उस लश्कर में शामिल थे। उन्होंने इस बात का बिल्कुल परवाह नहीं की कि उनका सिपाहीसालार 18-19 साल का नौजवान है। दरअसल वो अल्लाह के रसूल के हर हुक्म की तामील करना अपना दीनी फर्ज समझते थे। जो बात अल्लाह के रसूल को पसंद थी वो उन्हें भी पसंद थी, जिस बात को अल्लाह के रसूल नापसंद करते वो उन्हें भी नापसंद होती।
हिज्रतुल विदा के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा देते हुए फरमाया, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि चाहे तो दुनिया की नेमतों को कबूल कर ले और चाहे तो अल्लाह के पास जाकर उन नेमतों को कबूल कर ले जो वहाँ मिलने वाली हैं। तो उस बंदे ने अल्लाह के पास जाकर मिलने वाली नेमतों को कबूल कर लिया। ये खिताब सुनकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दिल भर आया। वो समझ गए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फरमाया है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए तो मर्ज की शिद्दत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक नमाजें पढ़ाने लगे। एक सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अफाका महसूस हुआ तो सहारा लेकर मस्जिद में तशरीफ ले आए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़ा रहे थे। उन्होंने पीछे हटना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से उन्हें नमाज पढ़ाते रहने का हुक्म दिया। 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी बरोज पीर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई। ये दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक के लिए सदमे का सबसे बड़ा दिन था। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर यह खबर बिजली बनकर गिरी थी। उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने बहुत मिसाली किरदार अदा किया। सैयदना उमर फारूक का ज़हन ये तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा सकते हैं। उन्होंने तलवार निकाल कर कहा, जो शख्स ये कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई, मैं उसे जान से मार दूंगा। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उनके मुतालिक ये खबर पाई कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप मस्जिद में तशरीफ लाए और कहा, उमर ठहरो, खामोश हो जाओ। फिर आपने लोगों के सामने तकरीर की, लोगों, जो शख्स तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, और जो अल्लाह ताला की इबादत करता था तो वो सुन ले कि अल्लाह ताला जिंदा है, वो कभी फौत नहीं होगा। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह आयत तिलावत फरमाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल ही हैं। उनसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं। क्या अगर उनका इंतकाल हो जाए या वो शहीद हो जाएं तो तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? और जो कोई फिर जाए अपनी एड़ियों पर तो हरगिज अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ेगा। अनकरीब अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को नेक बदला देगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, अल्लाह की कसम उस वक्त ऐसी सूरत हाल थी कि गोया लोगों को मालूम ही नहीं कि ये आयत नाजिल हो चुकी है। खुद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, अल्लाह की कसम जब मैंने अबू बकर सिद्दीक से इस आयत को सुना तो मैं जमीन पर बैठ गया। मैंने जान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुसलमानों के लिए ये मसला बहुत अहम था कि अब उम्मत मुस्लिमा की सरबराही किसके सुपुर्द की जाए, कौन है जिसे नबी का जानशीन बनाया जाए। उसके लिए उनकी निगाह इंतखाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर पड़ी, क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के साथी भी थे और उनके बेहतरीन रफीक भी। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अमीर हज भी मुकर्रर हुए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह नमाज में इमामत भी फरमाई। उन्हीं बातों के पेश नजर मुसलमानों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर आपको खलीफा मुंतखब कर लिया। खलीफा बनने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपना पहला खुतबा देते हुए कहा, लोगों, अल्लाह की कसम मैंने कभी तुम्हारा अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं की। तुमने मुझ पर एक ऐसा बोझ डाल दिया है जिसके उठाने की ताकत मैं अपने अंदर नहीं पाता और अल्लाह की मदद के बगैर उसको संभाल नहीं सकता। लोगों, मुझे तुम्हारा खलीफा बनाया गया है और मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं अच्छे काम करूँ तो मेरी मदद करना और अगर मैं गलती करूँ तो मुझे दुरुस्त कर देना। याद रखो, सच्चाई अमानत है और झूठ खयानत। तुम में से जो कमजोर है वो मेरे नजदीक ताकतवर है, यहाँ तक कि मैं उसका हक दिलवा दूं, और तुम में से जो ताकतवर है वो मेरे नजदीक कमजोर है, यहाँ तक कि मैं उससे दूसरों का हक वसूल कर लूं। जो कौम अल्लाह ताला की राह में जिहाद को तर्क कर देती है, अल्लाह ताला उस पर जिल्लत मुसल्लत कर देता है, और जिस कौम में बेहयाई फैल जाती है उस पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होता है। जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करता रहूं तो मेरी अताअत करो, और जब मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करूं तो तुम पर मेरा हुक्म मानना फर्ज नहीं। अब नमाज के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। इस तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा बने। खलीफा बनने के बाद उन्होंने जो हुक्म जारी किया उससे न सिर्फ उनकी बसीरत और दनाई जाहिर होती थी, बल्कि उनके इस फैसले ने मिल्लत इस्लामिया को इंतशार और वसवसों से निकालकर मजबूत बुनियादों पर खड़ा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद की सालारी में जो लश्कर मुल्क की शाम भेजने के लिए तैयार किया था वो अभी तक रवाना नहीं हुआ था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उस लश्कर को जाने का हुक्म दिया। उसी दौरान में ये खबरें आने लगी कि बहुत से कबीले मुर्तद हो गए, यानी इस्लाम से फिर गए। कुछ कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। ये वो लोग थे जिन्हें इस्लाम कबूल किए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, इसलिए वो इस्लाम की हकाइक और सच्चाई को अभी समझ नहीं पाए थे। इन हालात को देखकर नबुवत के झूठे दावेदार भी पैदा हो गए। जब इस तरह के हालात पैदा हो गए तो बहुत से लोगों ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मशवरा दिया कि उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लश्कर को अभी रवाना ना करें। उन लोगों को यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है ताकि अगर दुश्मन मदीने पर हमला करें तो उनका मुकाबला किया जा सके। उन मशवरा देने वालों में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थे, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपनी नरम मिजाजी के बावजूद उस मामले में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और फरमाया, अल्लाह की कसम अगर मदीना इस तरह आदमियों से खाली हो जाए कि दरिंदे और कुत्ते मुझे फाड़ खाएं, तब भी मैं इस लश्कर को शाम जाने से नहीं रोकूंगा जिसको रसूलुल्लाह ने शाम जाने का हुक्म फरमाया था। जब सहाबाए कराम ने उनको अपने इरादे में मजबूत देखा तो मशवरा दिया कि लश्कर का सिपाही सालार 9 उमर उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जगह किसी तजुर्बेकार और उमर रसीदा सहाबी को बना दिया जाए। ये सुनकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक को गुस्सा आ गया। उन्होंने फरमाया, ये तुम कैसा मशवरा दे रहे हो? जिस शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का अमीर बनाया, मैं उसकी जगह किसी और को अमीर मुकर्रर कर दूं? ऐसा हरगिज नहीं होगा। चुनांचे उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लश्कर तैयार किया गया। उस लश्कर को रुखसत करने के लिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक खुद मदीने के बाहर दूर तक उन्हें छोड़ने गए।
फुर्सत करते हुए कैफियत ये थी कि उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार थे और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उनके पीछे पैदल चल रहे थे। उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे गुजारिश की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, या तो आप ही घोड़े पर सवार हो जाएं या मुझे घोड़े से उतरकर पैदल चलने दें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ना तो मैं सवार होऊंगा ना तुम्हें घोड़े से उतरने दूंगा। अगर कुछ देर के लिए मेरे कदमों पर अल्लाह की राह का गुबार पड़ जाए तो उससे मेरी शान में कोई कमी नहीं आ जाएगी। ये लश्कर 2 माह 10 दिन के बाद लश्कर रोम को इबरतनाक शिकस्त से दो चार करके वापस आया। उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लश्कर को रवाना फरमाने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक दूसरे फितनों की तरफ मुतवज्जह हो गए। जिन लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया था उनके बारे में कहा, अल्लाह की कसम, अगर उन्होंने मुझे वो रसी ना दी जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा किया करते थे तो उस रसी के न देने पर मैं उनसे कताल करूंगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके मसाइल से निपटने के लिए 11 लश्कर तरतीब दिए थे। ज़कात ना देने वाले कबाइल से जंग की गई और उनसे ज़कात वसूल की गई। कुछ किबले इस्लाम से फिर गए थे। लश्कर इस्लाम की मदद से उन्हें भी मुतई व फरमाबरदार बनाया गया। सबसे अहम और खतरनाक फितने झूठी नबूवत थे। उनमें सबसे खतरनाक मुद्दई नबूवत यमामा का मुस्लिमा कज़्ज़ाब था। उसने तकरीबन 40,000 का लश्कर जमा कर लिया था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने लश्कर के साथ उसकी तरफ रवाना हो गए। यमामा में मुस्लिमा चंद दिन तक मुजाहिदीन के मुहासरे में रहा, फिर खून रेज जंग छिड़ गई। बिलाखिर मुस्लिमा कज़्ज़ाब मारा गया। 10,000 मुर्तद हलाक हुए। इस जंग में तकरीबन 600 मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर खिलाफत में बपा होने वाले फितनों में ये फितना सबसे बड़ा था। उस फितने के खात्मे के साथ ही मुर्तदों की कमर टूट गई, मुसलमान गालिब आ गए और हर तरफ अमन हो गया। जिस तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह एजाज हासिल है कि उन्होंने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, उसी तरह उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कुरान को किताबी सूरत में जमा करने का शर्फ भी सबसे पहले हासिल हुआ। उसकी जरूरत यूं पेश आई कि यमामा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग यमामा में सैकड़ों हाफिज कुरान सहाबा शहीद हो गए थे। खतरा था कि अगर जंगों में यूं ही शहादतें होती रहीं तो जिन लोगों के सीनों में कुरान महफूज है वो खत्म होकर रह जाएंगे। चुनांचे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, आप अक्लमंद और नौजवान आदमी हैं, मैं तुम्हें इस काम पर मामूर करता हूँ। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही लिखते रहे हैं, लिहाजा आप कुरान करीम के हिस्से तलाश करें और जमा करें। ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खजूरों की शाखों, पत्थर की सिल्लों, लोगों के सीनों, चमड़ों और हड्डियों पर लिखा हुआ कुरान जमा किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी में ये कुरान उनके पास रहा, फिर सैयदना उमर फारूक के पास रहा और उनके बाद उनकी बेटी उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिनते उमर के पास आ गया। अंदरूनी मसाइल पर काबू पाने के बाद आप ईरान और रोम की तरफ मुतवज्जह हुए। उस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतें यही थी। ईरान के लोग आग के पुजारी थे और अहले रोम ईसाई थे, लेकिन दोनों ही इस्लाम और मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक में आसपास के मुल्कों के सरबराहों के नाम खतूत रवाना फरमाए थे, जिसमें उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी गई थी। ईरान के बादशाह खसरो परवेज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह उसके मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर खसरो परवेज के बेटे ने उसे कत्ल कर डाला। उसके बाद ईरानी आपस में लड़ने लगे। उसी दौरान सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बन गए। उन्होंने खालिद बिन वलीद को लश्कर देकर ईरान की तरफ रवाना किया। उनके अहले ईरान के साथ 15 मार्के हुए, उन सब में उन्होंने कामयाबी हासिल की। रोम की तरफ 4 लश्कर रवाना किए गए। उनके सिपहसालार ज़ैद बिन अबी सुफियान, शर्जील बिन हसना, अबू उबैदा बिन जर्राह और उमरो बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। इन लश्करों में मुजाहिदीन की तादाद तकरीबन 27,000 थी। ये लश्कर 4 मुख्तलिफ रास्तों से रोम पर हमला आवर हुए। बाद में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी उनसे आ मिले। अजनादीन के मकाम पर जबरदस्त मार्के के बाद रोमी लश्कर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अजनादीन के मकाम पर शिकस्त खाकर रोमी यरमुक में जमा हो गए। वहाँ भी जबरदस्त जंग हुई। ये लड़ाई अभी जारी थी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक बीमार हो गए। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी जगह नमाज पढ़ाने लगे। जब बीमारी ने शिद्दत इख्तियार की तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने वसीयत फरमाई, मेरे बाद उमर खलीफा होंगे। ये वसीयत सुनकर सहाबा ने कहा, आपने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खलीफा बना दिया, हालांकि उनके मिजाज में बहुत सख्ती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जब खिलाफत का बोझ सर पर पड़ेगा तो ये सख्ती जाती रहेगी। वो उम्मत के बेहतरीन आदमी हैं। बीमारी की हालत में उन्होंने पूछा कि खलीफा बनने से अब तक बैतुल माल से कितना वजीफा मिला है। हिसाब करके बताया गया तो आपने फरमाया कि मेरी फला जमीन बेचकर ये रकम बैतुल माल में जमा कर दी जाए। मुसलमानों के माल गनीमत में उनके पास एक हबशी गुलाम, एक दूध देने वाली ऊँटनी और कुछ माल था। उन्होंने वसीयत की कि वफात के बाद ये चीजें सैयदना उमर तक पहुँचा दी जाए। फिर उन्होंने वसीयत की कि मेरी कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनाना। अपने कफन के बारे में उन्होंने कहा, मेरी इन दोनों चादरों को देखना, जब मैं फौत हो जाऊं तो उनको धोना और मुझे इन्हीं चादरों का कफन देना, इसलिए कि नए कपड़े की मैयत की निस्बत जिंदा शख्स को ज्यादा जरूरत है। फिर फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात किस दिन हुई थी? जवाब मिला, पीर को। फरमाया, आज पीर है, मुझे उम्मीद है मेरी वफात भी आज ही होगी।
सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर मौत का आलम तारी हुआ तो मैंने कौले हातिम से एक बात कही, जब मौत के वक्त हलक में सांस घुट जाती है और उसकी वजह से सीना यानी दिल तंग पड़ जाता है तो उस वक्त माल और दौलत किसी के कुछ काम नहीं आता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने यह सुनकर फरमाया, प्यारी बेटी आप ऐसा ना कहें, बल्कि कहें मौत की सख्ती हक के साथ आ पहुंची, यही है वो चीज जिससे तू भागता था। 22 जमात सानी हिजरत के 13वें साल पीर के दिन आप उस दुनिया से रुखसत हो गए। वफात के वक्त आपकी उम्र 63 साल थी। आप 2 साल 3 माह और 11 दिन खलीफा रहे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पेशे के लिहाज से ताजिर थे, उसी बिना पर आपने शोहरत पाई। आप खुश अखलाक, ईमानदार और अपने मामलात को हमेशा बेहतर रखने वाले थे। खलीफा बनने के अगले रोज जब वो कंधे पर कपड़े के थान रख कर बेचने के लिए बाजार की तरफ निकले तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अगर आप तिजारत करते रहे तो मुसलमानों की काम कौन सा अंजाम देगा। चुनांचा मुसलमानों के आपस के मशवरे के बाद आपका वजीफा मुकर्रर हुआ। ये भी इतना था जितना आम आदमी का खर्च होता है। जब वफात हुई तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मेरे वालिद फौत हुए तो हमने देखा कि उनके पास एक गुलाम था और एक ऊंट था जिस पर बाग की आब पाशा की जाती के लिए पानी लाया जाता था। बस उनकी वसीयत के मुताबिक हमने ये दोनों चीजें सैयदना उमर को भेज दी। उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्हें देखकर रो पड़े और फरमाया, अल्लाह अबू बकर सिद्दीक पर रहम फरमाए, उन्होंने अपने बाद में आने वाले को सख्त मुश्किल में डाल दिया है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को इबादत का बहुत शौक था। वो दिन को रोजा रखते और रात को क़याम करते। तिलावत करते वक्त इतना रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती। परहेजगारी उनका वस्फ था। एक दिन आपका ये गुलाम खाने की कोई चीज लाया, आपने उसमें से कुछ खा लिया, लेकिन खाने के बाद गुलाम का कुछ ख्याल आया तो उसने आपसे पूछा, आपको मालूम है आपने जो खाया है वो कहाँ से आया है। आपने फरमाया, बताओ कहाँ से आया है। उसने बताया, जमाना जाहिलियत में एक शख्स ने मुझ पर कुछ मंतर परवाया था और उसकी उजरत है। ये सुनकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपने हाथ मुंह में डाला और जो कुछ पेट में गया था कह के जरिए सब कुछ बाहर निकाल दिया। खलीफा बनने के बाद भी आप लोगों का काम उसी तरह करने की कोशिश करते थे जैसे पहले करते थे। इर्द गिर्द के कबाइल की बच्चियां अपनी बकरियां उनके पास लाती थी ताकि वो उनका दूध निकाल दें। बाद में भी ये मामूल जारी रहा। आपने हमेशा लोगों को नेकी की तलकीन की और बुराइयों से मना किया। आपको गुस्सा बहुत कम आता था। आप अक्सर गुस्सा जब्त कर जाते थे। अल्लाह ताला ने मोमिनों की तारीफ करते हुए फरमाया है, और अपने रब की बख्शिश की तरफ और जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। जो लोग आसानी में और सख्ती के मौके पर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, गुस्से पर जब्त करने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं, अल्लाह इन नेक लोगों से मोहब्बत करता है। अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक आदमी पर बहुत सख्त नाराज हुए, हत्ता कि आपका रंग तब्दील हो गया। मैंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, अल्लाह की कसम अगर आप मुझे हुक्म फरमाए तो मैं उसे कत्ल कर दूं। ये कहना था कि गोया आप पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो, यानी उस आदमी के बारे में आपका गुस्सा खत्म हो गया। फिर आपने फरमाया, अबू बरज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उसका किसी को हक नहीं पहुंचता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुख्तलिफ औकात में 5 शादियां की। आपके 3 बेटे और 3 बेटियां थी, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद, अस्मा, आयशा और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ताइफ की लड़ाई के दिन जख्म खाकर शहीद हो गए थे। अब्दुर्रहमान सबसे बड़े लड़के थे, शुजाअत और तीरंदाजी में मुअर्रफ थे। अस्मा बिन्ते अबी बकर की शादी जुबैर बिन अव्वाम के साथ हुई, जबकि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के मर्तबे पर फाइज हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी हुई। मोहम्मद बिन अबी बकर मिस्र में शहीद कर दिए गए। उम्मे कुलसूम की शादी तलहा बिन उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखते थे, उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा मोहब्बत उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। उनके लिए हमेशा हर वक्त अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे वालियाना मोहब्बत रखते थे, हर वक्त उनको साथ रखते। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अक्सर कोशिश यही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जुड़ कर बैठे, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जगह हमेशा छोड़ दी जाती थी। जब वो अपनी जगह आकर बैठ जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख उनकी तरफ हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उनके मुतालिक इरशाद किया, अबू बकर मुझे तमाम लोगों में सबसे ज्यादा प्यारे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक से ज्यादा मर्तबा जन्नत की बशारत दी। एक दफा फरमाया, अबू बकर हौज़े कौसर पर मेरे साथ होंगे। अशरा मुबश्शरा में आपका नाम सबसे पहले आता है। अशरा मुबश्शरा उन 10 सहाबाए कराम को कहते हैं जिन्हें उनकी जिंदगी ही में जन्नत की बशारत दे दी गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्योंकि पढ़े लिखे शख्स थे, इसीलिए कुरान हदीस के इल्म पर उन्हें मुकम्मल उबूर हासिल था। उनकी गुफ्तगू फसाहत व बलागत का नमूना होती थी और उसमें सुनने वालों के लिए बड़ी नसीहत होती थी। आए हम भी उनकी चंद नसीहतें पढ़ें। नंबर 1, मुसीबत की जड़ इंसान की गुफ्तगू है। नंबर 2, अक्लमंद की पहचान ये है कि वो ज्यादा बातें नहीं करता।
नंबर 3, सच्चाई, अमानत और झूठ खयानत है। नंबर 4, किसी मुसलमान को हकीर ना जानो। नंबर 5, जिस कौम में बुरी बातें आम हो जाएं अल्लाह उसे मुसीबत में डाल देता है। नंबर 6, हर अच्छे काम के सवाब का एक अंदाजा है लेकिन सब्र का सवाब बेअंदाजा है। नंबर 7, गुनाहों से तौबा करना जरूरी है लेकिन गुनाह से बचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नंबर 8, उस दिन पर रो जो तेरी उम्र से गुजर गया और तूने उसमें कोई नेकी नहीं की। नंबर 9, अल्लाह ताला उस वक्त तक नफली इबादत कबूल नहीं करता जब तक कि फर्ज अदा ना हो जाए। नंबर 10, जो कौम जिहाद को छोड़ देती है अल्लाह उसको जलील कर देता है। नंबर 11, मजलूम की बदुआ से बचो क्योंकि अल्लाह उसको फौरन सुन लेता है। नंबर 12, इल्म बगैर अमल के बेकार है। नंबर 13, बुरों के पास बैठने से अकेले बैठना ज्यादा अच्छा है। नंबर 14, दवाएं खा खा कर सेहतमंद नहीं बना जा सकता। नंबर 15, जिस पर नसीहत असर ना करे उसका दिल ईमान से खाली है। नंबर 16, मिस्कीन और मोहताज को आजिजी और अदब से खैरात दो इसलिए कि खुशी से खैरात देना उसके कबूल होने की निशानी है। नंबर 17, अल्लाह से हया करो, हर काम करते वक्त याद रखो कि अल्लाह देख रहा है। नंबर 18, बड़ाई परहेजगारी में है और इज्जत आजिजी में। नंबर 19, आपस में भाई भाई बनकर रहो जैसा कि तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। नंबर 20, एक दूसरे से ताल्लुक मत तोड़ो। नंबर 21, किसी से हसद ना करो और ना किसी के खिलाफ दिल में कीना रखो।